Hello everyone, welcome to Prelims Aptitude Mastery. I hope your preparation is going well. So today is the second class of this series, and I hope you have been through the first video. Just a small disclaimer: if you are getting this video in your YouTube feed, you must subscribe the channel for further videos because this is one thing which helped me and which helped other aspirants to clear the prelims, and I wish this will help you to clear the prelims if you're stuck on margin. So if you are getting this video, you must subscribe the channel. Maybe it is possible that next time you will not get the video again because of the YouTube algorithm. So let's start. Before going further, let's revise what we have done in the previous video. So these are some basic logic traps and aptitude which we have to develop to solve the PYQ, to solve the prelims paper, and this we will develop using the PYQs. And most of the people, including the toppers, those who have get selected, those who write mains repeatedly, those who clear prelims very easily, they use such things in their exam and while solving the paper, and they clear the prelims and write the mains. So without wasting any further time, let's start with the things. So if first was according to the constitution or defined in the constitution, if something is given like that in the question, then you must be cautious because based on the PYQ patterns, that statement is generally incorrect. Like if something is given that particular x, something is like there is something x which is defined in the constitution, so generally that thing is not defined in the constitution, that thing is incorrect. Like this in question number 13, the Constitution of India defines its basic structure. So this was the first thing, बेसिक स्ट्रक्चर कहीं डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऐसी चीज़ें जनरली गलत होती हैं. एंड देयर इज ऑल्सो थिंग कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, तो उन चीज़ों में भी आपको कॉशियस रहना है कि सच थिंग्स आर जनरली करेक्ट इनकरेक्ट. और आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आपके पास नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, you have the knowledge, but in exam when you are under the pressure conditions, तो उस टाइम पे ना सब चीज़ें मिक्सअप हो जाती है. सो यू माइट नॉट बी एबल टू रिकॉल कि whether it is in the constitution or not. So based on the PYQs you have to be cautious that such patterns are generally incorrect, such statements are generally incorrect. So but there are exceptions, like in 2025 I will be discussing with you, but this is the general rule that if it is given according to the constitution or defined in the constitution, that is generally incorrect. And the next is exchange of organization, institutions, offices and even ministry. So what UPSC does is कि UPSC ना बहुत easily और बहुत smartly कोई ऑर्गेनाइजेशन दिया होगा, कोई इंस्टीट्यूशन दिया होगा या कोई मिनिस्ट्री दी होगी, तो उसे एक्सचेंज कर देना. फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर, या प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ स्टेट गवर्नमेंट, पीएम के साथ सीएम, आरबीआई की जगह सेबी. कोई मिनिस्ट्री दी होगी तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो ऐसे यूपीएससी एक्सचेंज करता है डिपार्टमेंट्स को एंड इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को. लाइक इन क्वेश्चन नंबर 50 ऑफ दिस 2021, ये क्वेश्चन है 21 फरवरी इज डिक्लेयर टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ. बट ये यूनेस्को आना था, यूपीएससी ने बहुत इजीली इस चीज़ को एक्सेस कर दिया. इसका सिंपल लॉजिक ये है कि भाई ना यूपीएससी जो ये 100 क्वेश्चन बना रहा है ना, 100 क्वेश्चन में से अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले 70 क्वेश्चन हैं, तो 70 में ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा. उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें एक स्टेटमेंट गलत हो रही है या दो हो रही है या ज़्यादा भी हो सकती है. तो यूपीएससी को जहाँ चीज़ें गलत बनानी है तो वो ऑब्वियस चीज़ों को पकड़ता है. तो ऑब्वियस चीज़ें क्या है, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, तो यूपीएससी इन इंस्टीट्यूशंस को कैच करता है एंड इट मेक्स दोस इंस्टीट्यूशंस इनकरेक्ट. और अगर ऐसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से ऐसे 8 क्वेश्चन होंगे जिसमें ये चीज़ गलत होगी. सो यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू एनालाइज द PYQs, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू एनालाइज अगेन, यू हैव टू प्रैक्टिस. सो इट इज़ प्रैक्टिस, एनालाइज, प्रैक्टिस, एनालाइज, practice. So this is something which you have to do multiple times. This is something which you have to do repeatedly so that you develop that aptitude to solve the questions in PYQs. Because जब आप ये multiple times revise करोगे, multiple time इस चीज़ को practice करोगे, you will get comfortable with the UPSC questions. और जब एग्ज़ाम आएगा आपके पास 24 मई 2026 को, you will be very much comfortable than other people who are just relying on the knowledge or just some absurd elimination tricks.
भाई ऊपर ऊपर से देख लिया है कि ऐसे एलिमिनेट होता है, ऐसे यूपीएससी ट्रैप डालता है, बट उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, तो उनका नहीं होता। मेरे काफ़ी अननोन लोग हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें यूट्यूब से देखी थी, बट उन्होंने एम्पल प्रैक्टिस नहीं की। उन्होंने सिर्फ देखा कि भाई ऐसा होता है, दिस हैपन्स लाइक दिस वे, बट दे डिड नॉट प्रैक्टिस एंड दे जस्ट अप्लाइड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द एग्जाम, बट दे वर नॉट कॉन्फिडेंट, दे डिड नॉट प्रैक्टिस मच। सो उसके कारण हुआ क्या कि दे मिस्ड द कट ऑफ नॉट जस्ट बाय मार्जिन बट मोर देन 10 to 15 मार्क्स, इवन समवन 20 मार्क्स। तो ऐसा होता है, सो इट हैपन्स। सो फॉर दैट यू नीड द just one thing, practice, and that too multiple times. चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फोर्थ में है कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट। सो यूपीएससी करता है कि कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं दूसरे को, एक दूसरे के आपस में ऑपोजिट होती हैं। तो जब दो स्टेटमेंट आपस में ऑपोजिट हैं या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं दूसरे को, दे कैन नॉट बी डायरेक्ट टुगेदर। तो इसलिए क्या है कि उससे एक स्टेटमेंट जो बाकी फिर आपकी नॉलेज का रोल आता है। तो ऐसे कि जो चीज़ ऑपोजिट है तो दे विल नॉट गो टुगेदर। तो अगर कोई ऑप्शन हो रहा जहाँ वो दोनों एक साथ होंगी तो दैट विल बिकम ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट एंड देन अदर नॉलेज विल बी अप्लाइड देयर टू फाइंड द फाइनल आंसर। एंड ऑल्सो ये भी है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसमें स्टेटमेंट ये है कि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। जब दो अपोजिट स्टेटमेंट होती है, जब दो कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट होती है तो आंसर जनरली उन दोनों में से एक होता है। यहाँ तो मल्टीपल स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 18 में, सो यू हैव टू अप्लाई द अदर नॉलेज, यू हैव टू अप्लाई द स्टैटिक नॉलेज। बट क्वेश्चन नंबर 3 जैसे है ना, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन में अगर कोई दो कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट दी गई है जिसमें सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जनरली आंसर 80% जो टाइम्स हो रहा है। अगर 10 क्वेश्चन ऐसे हैं तो आउट ऑफ दोज 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें अगर दो कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट दी गई, जैसे बी दिया हुआ है डी दिया हुआ है, तो आंसर उन दोनों में से एक होगा। और जब आप PYQs को एनालाइज करोगे आपको ये चीज़ मिलेगी कि भाई जो दो कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट्स हैं उनमें से ही एक आंसर है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं 5th पे। सो इट इज़ लाइक पेयरिंग, नॉट जस्ट पेयरिंग, इट इज़ कि इफ़ समथिंग इज गिवन नेगेटिव, कुछ चीज़ नेगेटिव है, कोई चीज़ के बैड इफेक्ट होने वाले हैं, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है ना वो बैड ही हो रहा है, कुछ उसका कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव ही हो रहा। अगर ब्रिटिशर्स के बारे में कुछ दिया हुआ है, ब्रिटिशर्स छोड़ो यार, अगर आपको दिया हुआ है कि भाई इस चीज़ से ना ये कोई गंदी चीज़ है, इट इज़ समथिंग बैड, तो उसका बैड कॉन्सिक्वेंस ही हो रहा, उसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जब हम थोड़ा एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो हमें पता है कि भाई ये कुछ पॉजिटिव चीज़ है, एंड इवन स्टेटमेंट पढ़ने से ये पता चल रहा है कि भाई कुछ पॉजिटिव चीज़ है, तो इससे कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव ही होंगे। अगर आपको याद आ रहा है तो एक क्वेश्चन था, it was about conventional farming and something about vertical farming. I'm not मुझे अभी क्वेश्चन वो याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट दैट वाज अ क्वेश्चन इन 2018 और 2020। तो वो क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व हो रहा कि जहाँ पर जो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के साथ पॉजिटिव जाएगा एंड नेगेटिव कॉन्सेप्ट के साथ नेगेटिव जाएगा। सो इट इज़ की पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर नेगेटिव। देन नेक्स्ट थिंग इज कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जनरली रॉन्ग होता है। फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई स्कीम है उसमें 2 मिनिस्ट्री दे दी हैं, यार किसी एक मिनिस्ट्री को जो है वो ट्वीट कर देंगे, किसी एक मिनिस्ट्री को गलत कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजेस ऑफ वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। तो WHO है और वर्ल्ड बैंक है। यार एग्जामिनर को क्या ही जाता है, इसमें से किसी एक स्टेटमेंट को जल्दी से इजीली ट्वीट कर देना, क्या पता वर्ल्ड बैंक ना हो IMF हो, उसी जगह वर्ल्ड बैंक डाल दिया, और दोनों कॉमन नेम है। जब हमें चीज़ पता ही नहीं है, हमें जनरली हम पढ़ते नहीं है सब चीज़ें, और पढ़ते भी तो भाई सब कुछ याद नहीं रहता, तो इट इज़ ईजी टू ट्वीट एनी ऑफ देम, कुछ भी ट्वीट कर देना। तो जनरली जहाँ पर मल्टीपल स्टेक होल्डर दिए होते हैं वहाँ ये गलत है। इफ़ देर आर 10 क्वेश्चंस लाइक दिस, तो आउट ऑफ दोज 9 विल बी इनकरेक्ट। ऑब्वियस है कुछ एक्सेप्शंस तो मिलेंगे, 1-2 एक्सेप्शन मिलेंगे। अभी ये 2021 और 2022 का क्वेश्चन था जिसमें G20 एंड कुछ पेरिस को लेकर क्वेश्चन था, तो उसमें ठीक था, मतलब वो एक एक्सेप्शन है, बट जनरल जो रूल है वो ये है। अब देखो, अब इन लॉजिक्स का ना, इन ट्रिक्स का या इस एप्टीट्यूड का ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आपके 100% ठीक हो, इवन अब आपके 60% भी ठीक होते हैं ना। आपने ये 30 क्वेश्चंस में अप्लाई किया और आपके उसमें ये 18 या 20 क्वेश्चंस भी ठीक हो गए, अरे यू विल गेट ऑटोमेटिकली 36 to 40 मार्क्स। चलो अब नेगेटिव हटा देते हैं, 12 क्वेश्चंस अगर गलत हो रहे हैं आपके
12 क्वेश्चन से कितना बना 2/3, 4 2 8, तो 36 में से 8 भी जाते हैं तो आपके 28 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। और ये वो मार्क्स है जो आपको पहले नहीं मिल रहे थे बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट नॉलेज और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एप्टीट्यूड डेवलपमेंट। तो जब आप ये एप्टीट्यूड डेवलप कर रहे हो तो आपको नेट 28 मार्क्स का गेन होगा। अब एज्यूम करो यार, जिस बंदे की कट ऑफ मिस हो रही है वो 5 नंबर से मिस हो रही है, उसे 28 मार्क्स मिल रहा है तो वो तो फॉरेस्ट की कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं। अब जिस बंदे को वो प्रीलिम्स देते हुए काफ़ी टाइम हो गया, किसी एस्पिरेंट को प्रीलिम्स देते हुए काफ़ी टाइम हो गया एंड वो नहीं हो रहा क्लियर, उसका 15 मार्क्स से रह रहा है, 10 मार्क्स से रह रहा है, अगर जो 28 मार्क्स मिल रहे तो ये इजिली प्रीलिम्स क्लियर करेगा। सो दिस इज समथिंग। तो ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आपको 100% अचीव करना है, द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द स्कोर। हमें स्कोर मैक्सिमाइज करना है, वो 60% भी होता है तो इनफ है। याद रखो 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 35 क्वेश्चन हमें ऐसे होते हैं जो आते होते हैं, जो स्टैटिक नॉलेज के बेसिस पे होते हैं, एंड 65 क्वेश्चन आर दोज जो हमें नहीं आते हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें से आते हैं दैट वी नो समथिंग अबाउट देम बट नॉट 100% श्योर। सो इफ वी अटेम्प्ट दोज 35 क्वेश्चन बेस्ड ऑन आवर नॉलेज एंड इवन इफ वी गेट 30 क्वेश्चन तो मार्क्स बनते हैं 60। ठीक है, 5 गलत हो रहे, उनको 5 को -5 कर लो एंड 65 है। आई एज्यूम कि यू अटेम्प्ट ओनली 55। इफ 55 में से अगर आपको जो है मेजरली 30 क्वेश्चंस भी आपके ठीक हो जाते हैं, इफ़ यू गेट 30 क्वेश्चंस करेक्ट एंड 25 इनकरेक्ट, तो आपके टोटल 60 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते हैं एंड यू गेट 30 क्वेश्चंस इनकरेक्ट एंड इफ़ यू कैलकुलेट यू विल गेट 100 मार्क्स। एंड इस साल की कट ऑफ है 92.66, लेस देन मतलब आपका जो 100 मार्क्स है ना, इट सिक्योर्ड है। अब एक फॉर्मर चल रहा है मार्केट में, आई लाइक स्टडी इन लाइब्रेरी इन ORL, तो वहाँ जब मैं एस्पिरेंट्स की बात सुनता हूँ तो वो ये कहते हैं कि यार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रेडिक्टेड कट ऑफ समथिंग अराउंड 82 + 2, कुछ ने 85 + -2 किया था और अब कह रहे हैं कि भाई UPSC ने 92.66 कट ऑफ दे दिया है। यार क्या नॉनसेंसिकल चीज़ है। जब तुम्हें पता है कि UPSC का कोई मतलब कोई रिलायंस नहीं है उनके ऊपर, यार कुछ रिलायबिलिटी नहीं है उसकी, तो अपना एश्योरेंस बना लो ना कि भाई मुझे 95+ लेके आना है, मुझे 100 लेके आना है। क्यों तुम 80 की रेंज में अटकना चाहते हो, तुम क्यों 85 की रेंज में अटकना चाहते हो? जस्ट मेक अ टारगेट कि मुझे 95+ लेके आना है, जस्ट मेक अ टारगेट कि मुझे 100 लेके आना है। व्हेन यू सिक्योर दिस मार्क्स you are in a comfortable zone, you are in a secure zone, you can prepare for your mains without wasting any further time after giving the prelims. So इस सब भसड़ में मत फंसो, इस सब फालतू की बातों में मत फंसो। जस्ट मेक अ टारगेट कि भाई मुझे 100 नंबर लाने हैं, उन 100 में से 100 क्वेश्चन हैं, मैं 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूंगा या करूंगी, उसमें से मुझे 90 अटैम्प्ट करने हैं और 10 मुझे छोड़ने हैं। ये बेसिक रूल है, इट कैन सब्जेक्ट टू वेरिएशंस। तो 90 में से मुझे 60 चाहिए, 30 गलत हो सकते हैं, 10 को मैंने स्किप कर दिया तो मेरा स्कोर बन गया 100। चलो एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो गया, 59 मेरे ठीक हुए हैं, तो भाई फिर भी तुम्हारे पास बन जाते हैं 97.66। क्या ही दिक्कत है भाई, 97.33, क्या ही दिक्कत है, प्रीलिम्स तो क्लियर हो रहा है ना, बस अपने CSET में मेहनत करनी है। चलो बातें तो होती रहेंगी। नेक्स्ट नाउ कम टू क्वेश्चन दिस थिंग, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स वी हैव डिस्कस्ड। द नेक्स्ट थिंग इज की फेवरेट थीम ऑफ UPSC। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको रिमूव कर दूँ। ठीक है, हाँ, फेवरेट थीम ऑफ UPSC। तो क्या करता है UPSC के कुछ फेवरेट थीम्स हैं। फेवरेट थीम जैसे कि भाई अशोका हो गया, अकबर हो गया, KDR हो गया, विजयनगर हो गया, पोर्ट्स हो गए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गया, गांधी जी हो गए, अजंता हो गया, कुछ लैंड के रिलेटेड केस हो गया, कुछ कॉइन्स के रिलेटेड कुछ हो गया। तो UPSC की फेवरेट थीम है। अगर ये ऑप्शंस में दिख जाए और वो क्वेश्चन आपको ना आता हो, कोई क्वेश्चन है वो आपको नहीं आता या आपको नहीं पता या आपको उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है एंड यू वांट टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, कि आपने क्वेश्चंस अभी कम अटेम्प्ट किए हैं, यू हैव अटेम्प्टेड जस्ट 70 क्वेश्चंस, यू हैव अटेम्प्टेड ओनली 65 क्वेश्चंस, यू हैव टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो ये क्वेश्चंस मिस नहीं करने हैं। तो ऐसा क्या है कि भाई अब जैसे इन क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है एंड जस्ट फॉलो दिस थिंग कि भाई UPSC की फेवरेट स्टेटमेंट क्या है, इसमें अशोका है या KDR। कहीं किसी क्वेश्चन में विजयनगर मिलेगा। तो अभी जैसे एक क्वेश्चन आया था अपना 2024 में था कि भाई एक राजा या राजेंद्र वन के नाम से कुछ क्वेश्चन था उसमें अंदर, तो मुझे नहीं आता था वो क्वेश्चन, मुझे एक्चुअली रिकॉल नहीं हो रहा था, तो मैंने उसमें यही लॉजिक लगाया था कि UPSC का फेवरेट थीम क्या है, विजयनगर एम्पायर। उसमें विजयनगर का सबसे फेमस राजा क्या था, राजेंद्र वन, या सॉरी राजेंद्र वन कह रहा हूँ मैं, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, बट इट वॉज द क्वेश्चन। जब हम पेपर डिस्कस करेंगे तो आई विल शो यू कि हाउ आई सॉल्व दैट क्वेश्चन इन द पेपर। सो इट इज़ लाइक दैट।
सो यूपीएससी अपनी फेवरेट थीम उठाता है एंड उसी के बेसिस पे आंसर्स देता भी है. तो दिस इज़ फॉलोड बाय यूपीएससी मल्टीपल टाइम्स. सो जब हम प्रैक्टिस करेंगे सो आई विल टेल यू कि ऐसे भी होता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ऑड वन आउट. ऑड वन आउट का क्या है भाई, देखो ऑड वन आउट में ना ऐसा है कि भाई 3 तो बहुत कॉमन क्वेश्चन ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन जो होंगे ना बहुत कॉमन होंगे, और जो फोर्थ हो रहा ना बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू हो रहा, आउट ऑफ द बॉक्स हो रहा कि आपने कभी आपको एज्यूम नहीं हो रहा. फॉर एग्जांपल ये है द वितल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वॉज पब्लिश्ड बाय गोपाल बाबा वालनकर. भाई हम पढ़ते हैं, हमने ये नाम कभी नहीं सुना, चलो ठीक है हो भी सकता है. ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव अम्बेडकर. अब ये तीनों नाम देखो यार, और ये नाम देखो BCD में ज्योतिबा फुले, गांधी जी, अम्बेडकर जी, इन तीनों के नाम बहुत कॉमन है, हम बहुत कॉमन पढ़ते हैं. अगर यूपीएससी चाहता है, इफ़ यूपीएससी वांटेड, तो यहाँ कोई कॉमन नाम दूसरा आ सकता था. फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय हो सकता था, या फिर पंडित नेहरू हो सकता था, या राजेंद्र प्रसाद हो सकता था, कुछ भी हो सकता था. बट यूपीएससी ने डेलिबरेटली ये नाम डाला, गोपाल बाबा वालनकर. क्यों डाला भाई? यूपीएससी को क्या इतनी एक्साइटमेंट थी कि भाई उसको ऐसे एक डिस्टिंक्ट नेम जो डालना है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स जनरली पढ़ते नहीं हैं. क्यों डाला? क्योंकि ये आंसर है, यह आंसर है. यह है ऑड वन आउट की टेक्निक कि 3 कॉमन होंगे और एक बिल्कुल ऑड वन आउट होगा. तो ऐसा है. इसी में एक चीज़ और होती है कि भाई सब जो है नाम कॉमन होते हैं, बट उसमें से एक कोई ऐसा नाम होगा जो बहुत ज़्यादा फेमस होगा. वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो कि ऐसा भी ऑड वन आउट होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. एल्मेनाइट एंड रुटाइल अबेंडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया आर इट सोर्सेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग. अब ये 2023 का क्वेश्चन है एंड आई वॉज अटेम्प्टिंग दिस पेपर. मैंने क्या पढ़ा भाई? मैंने देखा एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, टाइटेनियम है. टाइटेनियम चलो मुझे पता है कि भाई टाइटेनियम भी एक मिनरल है, ठीक है, बट ये 3 मुझे कॉमन लगे. चौथा मुझे थोड़ा वियर्ड लगा कि टाइटेनियम हम जनरली सुनते नहीं हैं, तो इट मस्ट बी द आंसर. आई मार्क्ड इट और मेरे 2 नंबर सिक्योर्ड हो रहे. ये क्या था? ये था ऑड वन आउट. ये फॉलो होता है एंड आई विल शो यू फर्दर क्वेश्चंस. अभी जैसे एक 2024 में आया हुआ था क्वेश्चन कि कोकोआ प्रोडक्शन किसका है सबसे ज़्यादा, तो उसमें एक ऑप्शन था क्रोएट डे आइवोर. अब उसमें ना जो वो ऑप्शन था यूपीएससी ने ना टेक्निकली फ्रेम किया हुआ था. कैसे फ्रेम किया हुआ था? उसमें जो है ना जो उसका कंट्री का जो रियल एक्चुअल नेम है, जो उसमें शायद एक सिंबल ऐसे एरो आता है, वो भी उसने यूपीएससी ने ऑप्शन में डाला हुआ था. भाई एग्जामिनर इतनी ट्रस्ट क्यों उठाएगा? वाई विल यूपीएससी एग्जामिनर लाइक बोदर सो मच कि भाई उसको ऐसे सिंबल वगैरह भी डालने जो उस लाइक नेम्स में ऐड होते हैं कई बार. तो यूपीएससी एग्जामिनर को क्यों डालने हैं? वो इसलिए डाला ना कि भाई उसका आंसर है. तो जब वो पेपर में आया ना, लाइक वी विल डिस्कस कि ऐसे भी होती हैं चीज़ें. नाउ कम टू नेक्स्ट थिंग कि सिमिलर लैंग्वेज इन 2 स्टेटमेंट्स. प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट. इस चीज़ में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि रीड ऑल 4 स्टेटमेंट्स. पहले पढ़ के अगर आपको लगता है कि पहला आंसर है तो उसे पढ़ के मत छोड़ के जाना, मतलब उसे पढ़ के ही टिक मार के मत चले जाना. फॉर एग्जाम्पल जब ये क्वेश्चन आया था तो देयर वर मैनी एस्पिरेंट्स जिन्होंने ये पढ़ा और इसे टिक मारा और आगे चले गए. इन तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ा ही नहीं. एंड दिस इज द मोस्ट सिलियस्ट मिस्टेक वन कैन एवर डू इन दिस एग्जाम, जहाँ पर सिर्फ 0.10 नंबर से या 0.66 नंबर से भी कट ऑफ मिस हो सकती है. सो दीज आर द लाइक क्वेश्चंस विच ऑफर यू फ्री ऑफ कॉस्ट 2 मार्क्स. तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है भाई? कभी भी कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपको लगता है कि भाई ए उसका आंसर है एंड यू स्किप रीडिंग ऑल द अदर स्टेटमेंट्स, दिस कैन प्रूव योर बिगेस्ट ब्लंडर. क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोगों को जो सिर्फ प्रीलिम्स ही कट ऑफ मिस करते हैं, जैसे 0.66, 0.13. इवन माई फ्रेंड मिस्ड द 2025 कट ऑफ बाय जस्ट 0.11 और समथिंग लाइक दैट, 0.11 और 0.12. इट वॉज समथिंग अप्रोक्सीमेटली दिस, बिकॉज उसने एक क्वेश्चन में क्या किया, ही जस्ट मार्क द ऑप्शंस. उसे लगा कि भाई इनिशियली कुछ आंसर था, ही जस्ट मार्क द ऑप्शन एंड उसका लेकिन आंसर जो है वो दूसरे में था. लाइक वो उसका जो मोर एक्यूरेट आंसर था वो सब ऑप्शंस में था, बट जल्दबाजी में वो पढ़ा तो उसमें निपटा दिया. चलो इसे पढ़ते हैं. प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट. ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट.
भाई ये तो है ही नहीं, ये तो हमारी नॉलेज का पार्ट है कि भाई अब नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें केशवानंद भारती में हो चुका था कि भाई पार्ट तो है, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम। ये भी केशवानंद भारती के हिसाब से गलत है, तो ये लीगल इफेक्ट तो है नहीं। अब स्टेटमेंट नंबर डी पढ़ते हैं। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। अब स्टेटमेंट नंबर ए और डी में क्या कॉमन है? अब इतना तो पार्ट कॉमन है, यहाँ तक पार्ट कॉमन है। तो अब यूपीएससी के पीवाईक्यूज के बेसिस पे क्या बताता हूँ कि जब भी यूपीएससी के दो स्टेटमेंट में एक पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर थीम कॉमन होती है, व्हेनेवर देयर इज अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट और अ थीम ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉमन, देन ईदर ऑफ दो स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ठीक होगी। तो जैसे ए है और डी है, ए में लीगल, ए से ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, एंड सिमिलरली इन डी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। ठीक है, अब इन दोनों में से जो है शुरुआत की जो है, बिगनिंग की जो पार्ट है ना, वो सेम है, बस एक लास्ट वाला ये डिफर कर रहा है। तो इसलिए जो आंसर हो रहा है या तो ए में से हो रहा है या डी में से हो रहा है, एंड वी रिक्वायर सम बेसिक नॉलेज, तो इसका आंसर बन जाएगा डी। बट एस्पिरेंट्स ने काफ़ी उस टाइम पे ए मार्क कर दिया था और ये आंसर हो जाता था डलतुमरा। अब नेक्स्ट में आऊँ 88 में, विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप। ठीक है, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विद पिस्टन। तो अभी है कि भाई सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग। अब जैसे कॉमन स्टेटमेंट्स आ रही है ना, तो यहाँ पर ही होता है कि भाई इन दोनों में से एक स्टेटमेंट ठीक होती है। हाँ, इसमें तो जो ये क्वेश्चन नंबर 88 है, इसमें तो दोनों, वैसे तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब क्यों गलत है वो तो हम जब पेपर सॉल्व करेंगे तो बताएंगे। बट एक जनरल जो रूल है वो आपके लिए है कि भाई जब दो स्टेटमेंट सेम होती है ना, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस वाटर, सोलर पावर कैन बी यूज्ड, तो जनरली इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ठीक होती है और दूसरी गलत होती है। बट यहाँ दोनों गलत है, एंड वो क्यों गलत है उसका दूसरा लॉजिक है, एंड आई विल टेल यू व्हेन आई विल बी सॉल्विंग दिस पेपर विद यू। तो उसका लॉजिक क्या है वो थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज ऑफ दिस कंपेरिजन। जब यहाँ दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है तो दिस कंपेरिजन रूल इज़ द डिफरेंट वन। बट माई पर्पज़ वॉज टू टेल यू कि भाई यहाँ मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया, मुझे यहाँ नहीं डालना था इस क्वेश्चन को, बट ठीक है। बस द ऑब्जेक्टिव इस जब दो कोई स्टेटमेंट या दो कोई थीम सेम होती है ना, तो उन दोनों में से एक चीज़ गलत होती है। इसमें आ जाओ, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड कवरेज, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग कवरेज। अब हमें ये नहीं आता ये क्वेश्चन, हमने नहीं पढ़ा, बट हमारा लॉजिक क्या कहता है कि भाई जब दो स्टेटमेंट कॉमन होती हैं तो उन दोनों में से एक गलत होती है और दूसरी ठीक होती है। तो दोनों जहाँ जहाँ 1 2 हैं वो हम काट देंगे। अब यानी कि 3 है, 3 हमारा ठीक है। अब हमें देखना है कि भाई इन दोनों में से कौन सी ठीक है। ठीक है, अब जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा दैट स्टेटमेंट 1 या ये स्टेटमेंट 1 एंड सॉरी मेरा थोड़ा उसमें इन्फेक्शन हो गया एंड आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। या तो हाँ इस पे आते हैं ऑल कैजुअल वर्कर्स। आई एम सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इसका आंसर वैसे डी है, बट माई ऑब्जेक्टिव इज टू टेल यू कि भाई जब यहाँ पर यूपीएससी सिमिलर स्टेटमेंट देता है तो इधर ऑफ देम इज इनकरेक्ट, एंड आई विल एक्सप्लेन। यहाँ थोड़ा मेरे से ब्लंडर हुआ है दैट आई पुट द क्वेश्चंस जहाँ ये रूल ब्रेक हो रहा है, बट यू कैन इंटरप्रेट कि भाई ये हर जगह रूल अप्लाई नहीं होता है, तो इसकी 100% एक्यूरेसी नहीं है। बट इन केस इफ़ यू आर स्टक विद सम क्वेश्चंस तो वहाँ ये चीज़ आपको रेस्क्यू करने में हेल्प करेगी, एंड आई अपोलोजाइज कि यहाँ पर ये थोड़ा मेरे से ब्लंडर हुआ। बट माई ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू टेल यू कि भाई जहाँ पर ये दो स्टेटमेंट कॉमन होती हैं, सिमिलर होती हैं, तो जनरली either of them is incorrect. So इसका आंसर जो है वैसे वो है डी है। Now coming to next thing, question number 10th is कि fact and data in two statement. Consider the following statement in respect of the national flag of India. ठीक है, चलो इतना डेप्थ में वैसे हम नहीं पढ़ते हैं, तो चलो one of the standard size of the national flag of India is 600 mm and 400 mm. The ratio of length to the height width of the flag shall be 3/2. अब यूपीएससी ने क्या ट्रैप किया है कि भाई ये रेशो भी 3:2 में दे दिया और ये रेशो भी 3:2 में दे दिया। अब ये 2023 का क्वेश्चन है और उस टाइम मुझे इतना एप्टीट्यूड आता नहीं था। अब मैंने सोचा कि भाई ठीक ही है, दोनों मैच कर रहे हैं, दे आर मैचिंग, दे आर इन कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर, तो मैंने इसका आंसर मार दिया ए, बट इट वॉज रॉन्ग, इट्स आंसर इज नॉट ए। लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रैप क्या है यहाँ पे। अब दो फैक्ट दिए हुए हैं ना स्टेटमेंट्स में, दो स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट में एक एक फैक्ट दिया हुआ है, तो दोनों ठीक नहीं हो सकती एक साथ में। क्यों?
इट इज़ ईजी टू ट्वीट। अब इन दोनों में से ना किसी एक को ट्वीट करना बहुत ईजी है, तो मैं इसको बदल देता हूँ मैं इसको बदल देता हूँ। बट इंस्टेड ऑफ लाइक चेंजिंग, लाइक इन दोनों को बदलने की बजाय अब यूपीएससी एग्जामिनर के पास क्या है कि भाई इसको बदलना बहुत आसान है। 3:2 का रेशो कुछ भी बन सकता है, क्योंकि इसमें भी रेशो 3:2 का बन रहा है और ये भी रेशो 3:2 का दिया हुआ है। देन वी कैन अज्यूम कि भाई ये तो ठीक ही हो रहा है, इसमें तो क्या ही गड़बड़ की होगी। बट इट इज़ ईजी टू चेंज दिस, इट इज़ ईजी टू ट्वीट दिस। तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 1, एंड आंसर विल बी डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। एंड ये कि भाई मैं क्या हवा हवा में बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, हवा में बता रहा हूँ, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे इट विल गेट मोर क्लियर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। ये आई गेस 2024 का क्वेश्चन है। या नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा, ठीक है। दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट, ठीक है। हमें नहीं पता इन दोनों में से क्या है कि देर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। जनरली जब भी हम वुमन को रिजर्वेशन देते हैं इवन इन पंचायती राज, तो जो विद इन शेड्यूल कास्ट के अंदर जो सब कोटा है वो भी वुमन को मिलता है। तो थर्ड तो ठीक ही है। अब आती है फर्स्ट की और सेकंड की बारी। देखो फर्स्ट में भी एक फैक्ट है कि 18th लोकसभा, एंड सेकंड में भी एक फैक्ट है 15th लोकसभा। अब जब ये क्वेश्चन आया था तो उस टाइम पे लोकसभा वो 18th नहीं थी। अब इन दोनों में से कि भाई अब जनरल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि करंटली कौन सी लोकसभा चल रही है। सो इट इज़ रॉन्ग एंड इस आंसर इज 2 and 3। अब बस ऑब्जेक्टिव ये बताने का दैट इफ 2 फैक्ट्स आर गिवन इन 2 स्टेटमेंट्स तो वो जनरली करेक्ट नहीं होते, उनमें से कोई एक फैक्ट गलत है। अब वो कौन सा गलत है वो आपको थोड़ा अपनी लेटरल नॉलेज से बताना होगा। रैंडम फैक्ट जनरली रॉन्ग, जो रैंडम फैक्ट है वो जनरली रॉन्ग होंगे। लेट्स रीड 96 भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल अंडर द, चलो ये तो फैक्चुअल चीज़ है कि भाई टाइटल तो नहीं है। सेकेंड इज कि पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। एक तो भाई एक्सट्रीम में जा रहा है कि भाई 1954 में स्टार्ट हुए थे, मल्टीपल फैक्ट और एक तो इस स्टेटमेंट में कि 1954 में स्टार्ट हुए थे, और दूसरा बोल रहा है कि भाई सिर्फ एक बार सस्पेंड हुए हैं। ठीक है भाई नहीं पता, बट पॉसिबल है यार कि इतने सारे गवर्नमेंट्स चेंज हुए, इंडिया विटनेस्ड लाइक सम एक्सट्रीम पीरियड्स एज वेल ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो क्या वो सिर्फ एक बार विटनेस होगा? आइडियोलॉजिकल क्लैश तो होता ही रहता है गवर्नमेंट्स के अंदर कि भाई एक पार्टी है और दूसरी पार्टी पावर में आ गई है, तो वो क्या करती है कि पिछले वाली जो गवर्नमेंट या पार्टी थी पावर में उसकी पॉलिसीज को रिपोर्ट कर देती है। तो इट इज़ पॉसिबल कि भाई क्या पता ज़्यादा हुआ हो। तो इट इज़ जस्ट एब्सर्ड फैक्ट, भाई एक बहुत एब्सर्ड फैक्ट है जो हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, तो इट विल बिकम इनकरेक्ट। ठीक है। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 years इन अ पर्टिकुलर। अब ये फैक्चुअल है क्योंकि भारत रत्न हर साल अनाउंस होते हैं, तो यू मस्ट बी अवेयर कि भाई वो कितने हैं, तो ये गलत ही है। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है उसकी, वैसे जनरली आई गेस 3 या 4 है कि भाई इतने ही अनाउंस हुए हैं, बट 2 साल ऐसे भी बीच में आएंगे जब 5 बार अनाउंस हुआ है, मतलब 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। तो थर्ड स्टेटमेंट वैसे जनरली इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर 1, 2, 3 है। अब आ जाओ इसके ऊपर। अकॉर्डिंग टू MSME एक्ट 2006 द मीडियम एंटरप्राइज आर दोज विद इन्वेस्टमेंट। भाई ये तो फैक्चुअल है, ठीक है, ये वैसे जनरली हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, बट ये जो नंबर है ना बहुत एब्सर्ड है, बहुत एब्सर्ड नंबर है। क्यों एब्सर्ड नंबर क्यों है? जब हम पढ़ते हैं ना यार उसका एक परफेक्ट ना कहते हैं रेशो में चलता है चीज़, देयर इज अ सर्टेन रेशो कि भाई इतना अगर उसका इन्वेस्टमेंट का है तो इतना उसका टर्नओवर का होगा। अभी तो नई लिमिट्स आ रहे हैं, बट यहाँ ये जो फैक्ट दिया हुआ है बहुत रैंडम दिया हुआ है, बहुत रैंडम नंबर दिया हुआ है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बन जाता है गलत। अब दूसरा है कि भाई ऑल बैंक्स लोन टू MSME क्वालिफाई एंड, अब ये थोड़ा ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, बट इसको बच्चे लोन काफ़ी ने एक्सट्रीम समझ लिया था कि भाई सारे लोन कैसे हो सकते हैं। सो इट इज़ करेक्ट, आपको थोड़ी जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि हम ये वेलफेयर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिविटी और डेवलपमेंट, इसका पैरामीटर, इसका ट्रायंगल जब हम बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये चीज़ पॉजिटिव है, ये ब्रॉड स्टेटमेंट है, तो ये ठीक हो जाएगी। इसका हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 88 पे। इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट। चलो भाई ये इकोनॉमिक सर्वे में ऐसी चीज़ें आती हैं, बट हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, एंड 3.2 यार बहुत एब्सर्ड नंबर है। हम जनरली सुनते हैं कि भाई 2% से कम ही है इंडिया का एक्सपोर्ट जो है, तो बहुत रैंडम फैक्ट है, बहुत रैंडम फैक्ट है। और यूपीएससी क्या करते हैं भाई, अगर 10 क्वेश्चंस में फैक्ट दिया हुआ है ना, तो 10 क्वेश्चन में से जो 8 क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें फैक्ट गलत होता है।
और ये कोई ऐसा नहीं कि भाई मैं तुक्का कोई मारने के लिए बता रहा हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये यूपीएससी के पीवाईक्यूज तो जब आप एनालाइज करोगे ना, यार देखो एग्जामिनर को कोई ना कोई स्टेटमेंट तो गलत बना दिया, इफ एग्जामिनर हैज टू मेक सर्टेन स्टेटमेंट्स रॉन्ग, तो यूपीएससी का एग्जामिनर कहीं ना कहीं तो ट्रैप डालेगा, ही और शी विल प्ले समवेयर। उसको प्ले करने के लिए क्या सेफ जोन है भाई, कोई कंसेप्चुअल चीज को क्यों गलत बनाना, कोई फैक्चुअल चीज को गलत बना दो, मेक सम फैक्चुअल स्टेटमेंट रॉन्ग, बिकॉज दैट इज वेरी इजी टू रॉन्ग। अब 3.2 को चेंज करा कितना इजी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये नंबर होता है 1.6%, इसको 3.2 बनाना कितना इजी है। अगर ये नंबर होता है 1.9%, इसको मैं 2.9% बना देता हूँ। इट इज ईजी, सो नंबर्स आर इजी टू चेंज, तो फैक्चुअल चीजें जनरली इनकरेक्ट होती है। नाउ नेक्स्ट थिंग, डेलिब्रेट एक्सटेंशन ऑफ स्टेटमेंट यूजिंग कंजक्चर। भाई ज्वाइन कर देना यूपीएससी चीज़ों को एंड एक्सटेंड कर देना। अभी 2018 के पेपर में भी ऐसी चीज़ें हैं, तो आई विल बी डिस्कसिंग दोज थिंग्स विद यू। तो अभी पहले चलो ये देखते हैं कि सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर्स डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। चलो मैं नहीं पता, एक बार के लिए छोड़ देते हैं इसको। द नेक्स्ट इज द सिंडिकेटेड लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट लमसम ऑफ फंड्स। ठीक है, अब ये कॉमा लगा के ना, अब इसने यूपीएससी ने क्या किया, बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। यूपीएससी एग्जामिनर यहाँ भी तो रोक सकता था, बट नहीं, उसने कॉमा लगाया और ये लाइन ऐड की। इस लाइन के कारण क्या हुआ, ये स्टेटमेंट बन गई गलत और इसका आंसर आ जाएगा सी। क्यों, ये ना यार ये पॉपुलर पैटर्न है यूपीएससी का कि भाई एग्जामिनर जानबूझ के एक एक्सटेंशन देता है स्टेटमेंट्स में, वो डेलिबरेटली गलत बनाता है उसको। अभी क्या बोल रहा है कि भाई जो लोन है वो फिक्स्ड और लमसम अमाउंट में हो सकता है, ठीक है, बट क्रेडिट लाइन में नहीं हो सकता। क्यों भाई, मतलब क्रेडिट लाइन थोड़ा ईएमआई टाइप समझ लो एक बार लिया कि भाई ईएमआई टाइप में नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? जब आजकल सब चीज़ें ईएमआई पे चल रही है तो भाई ये भी हो सकता है। तो यूपीएससी डेलिबरेटली ऐसे एक्सटेंशन देता है एंड इस एक्सटेंशन के कारण वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। 2018 में क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 9th शेड्यूल के रेस्पेक्ट में। जब वो क्वेश्चन आएगा तो आई विल डिस्कस विद यू कि कैसे डेलिबरेट एक्सटेंशन का यूपीएससी यूज करता है स्टेटमेंट को गलत बनाने में। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 96। द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। ठीक है, हो सकता है। द यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040, इतना पढ़ो एक बार, एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। भाई एग्जामिनर को स्टेटमेंट सही बनानी होती ना, वो यहाँ तक रुक जाता, इतनी स्टेटमेंट तक रुक जाता। यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040, बट उसे वो स्टेटमेंट गलत बनानी थी। ही वांट्स टू मेक दैट स्टेटमेंट रॉन्ग, दैट्स व्हाई ही एक्सटेंडेड द स्टेटमेंट डेलिबरेटली। ये जो फालतू की लाइन डाली है ना, तो ये एक्सट्रीम है, ऑब्वियसली है कि भाई एक्सट्रीम है, बट ये एक्सटेंशन भी है। एक्सटेंशन है कि ये डेलिबरेट एक्सटेंशन है टू मेक द स्टेटमेंट रॉन्ग, देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। क्या मतलब है भाई? तो जब यूपीएससी एग्जामिनर ऐसे एक्सटेंशन डालता है तो दो स्टेटमेंट्स आर जनरली रॉन्ग। नाउ दिस 13, जब मैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट की आपसे बात कर रहा था, इट इज़ लाइक दिस कि लेट्स रीड दिस स्टेटमेंट नंबर 1। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लिटिल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स। ठीक है भाई, जो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स है और लिटिल फर्म्स हैं उनको तो एडवोकेट रिकॉग्नाइज कर लिया है, बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स। जब ऐसे कंपेयर करता है ना यूपीएससी, तो जनरली वो स्टेटमेंट गलत होती है। भाई इनको कर सकते हैं एडवोकेट, इनको क्यों नहीं कर सकते? क्या मतलब बनता है? 2023 में क्वेश्चन था बैलिस्टिक मिसाइल वर्सेस क्रूज मिसाइल, ये क्वेश्चन था। ऐसे ही कंपैरेटिव क्वेश्चन था, यूपीएससी ने उसको गलत बनाया हुआ था। क्यों? एक्सचेंज करने का पॉसिबिलिटी मिल जाता है, या जब मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं तो उस किसी स्टेक होल्डर को रॉन्ग बनाने का यूपीएससी को चांस मिल जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटेड टू लीगल एजुकेशन एंड। ठीक है, बार काउंसिल को हम जानते हैं जनरली इट हैज़ अ वैरायटी ऑफ पावर्स। अब वैरायटी ऑफ पावर्स है तो भाई एक ये ब्रॉड चीज़ है, काफ़ी ब्रॉड हराइजन है कि इट हैज़ द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटेड टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन। ये काफ़ी ब्रॉड है एंड पॉजिटिव चीज़ है, तो इट कैन बी करेक्ट एंड इट मस्ट बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81। High clouds primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth. Low clouds have a high absorption rate. अब यूपीएससी ने क्या किया है? कुछ नहीं भाई, हाई क्लाउड को लो क्लाउड से चेंज कर दिया है, लो क्लाउड को हाई क्लाउड से चेंज कर दिया है। दोनों कंसेप्चुअल चीज़ है, बट जो कंसेप्चुअल की जो उनकी हेडिंग थी हाई क्लाउड वर्सेस लो क्लाउड, उनके कंसेप्ट को चेंज कर दिया है। हाई क्लाउड जो है, हाई क्लाउड है वो अपना
बेसिकली एब्जॉर्ब करता है, जो अपनी टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, जो लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं जो अर्थ एमानेट करता है, उनको एब्जॉर्ब करता है। एंड जो लो क्लाउड्स होते हैं ड्यू टू एल्बिडो, दे रिफ्लेक्ट बैक द सरफेस, जो सोलर की इनकमिंग रेडिएशन होती हैं, जो इंसोलेशन होती हैं, उनको रिफ्लेक्ट करता है। बट यूपीएससी ने इस कंसेप्ट को चेंज कर दिया एंड इट्स आंसर बिकम्स डी। जो मैं आपको बैलिस्टिक वाला बोल रहा था ना, ये है क्वेश्चन नंबर 2023 का पेपर है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट व्हाइल क्रूज मिसाइल आर रोकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज। इन्होंने कंसेप्ट बदल दिया भाई, क्रूज मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल में डाल दिया है और बैलिस्टिक मिसाइल को क्रूज मिसाइल में डाल दिया। सिमिलरली यहाँ पर है कि अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, वाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो यूपीएससी ने इसमें भी कंसेप्ट को एक्सचेंज कर दिया एंड यूपीएससी डज इट डेलिबरेटली टू मेक द स्टेटमेंट्स रॉन्ग। अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्टैटिक पता है, इफ यू आर अवेयर सम इवन बिट अबाउट द स्टैटिक नॉलेज, यू विल गेट टू नो कि भाई यूपीएससी ऐसे एक्सचेंज करता है। क्योंकि ब्रह्मोस पढ़ते हैं हम, अग्नि 5 पढ़ते हैं, इट इज़ वेरी कॉमन। बैलिस्टिक पता होता है, क्रूज पता होता है, सबको पता है यार। अब ये स्टेटमेंट में एक्सचेंज कर देते हैं जस्ट टू मेक इट रॉन्ग, तो इसका आंसर बन जाता है डी। तो वेन एवर देर आर कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स दे आर जनरली थोड़ा पेसअप करते हैं। 14th, तो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी जनरली करेक्ट। कोई पॉलिसी दी हुआ है XYZ, उसका कोई ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है, तो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव अगर कुछ दिया होगा दैट विल बी करेक्ट, दैट विल जनरली बी करेक्ट। या कोई वैसे ना कोई गवर्नमेंट स्कीम दी हुई है, कोई पॉलिसी प्रोजेक्ट दिया हुआ है, अब उसमें कुछ अच्छा दिया हुआ है, कुछ पॉजिटिव दिया हुआ है एंड वो पॉलिसी से एसोसिएटेड है, देन वाई वुड इट बी करेक्ट। और यूपीएससी ऐसा क्यों ही बोलेगा कि भाई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है और उसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो गवर्नमेंट को ऐसे नेगेटिव लाइट में नहीं दिखा सकती। भले सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, सब चीज़ें हैं, ठीक है, सेपरेटली वो फंक्शनिंग कर रही है अपनी, ठीक है, बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी गवर्नमेंट को क्यों नेगेटिव लाइट में दिखाएगी। अल्टीमेटली कर तो वो गवर्नमेंट के अंडर ही रही है ना काम, पैसा तो सरकार से मिल रहा है, भले वो चलो अलग प्रोसेस है, बट द थिंग इज कि कोई पॉलिसी दी हुई है, कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है और उसका कोई ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है, कई पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव है, देयर इज सम पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव एंड देयर इज सम ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव, तो दैट विल बी जनरली करेक्ट। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो लॉजिक नंबर 15, ब्रिटिशर्स हैं तो नैरेटिव फेम हो रहा। भाई देखो, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, तो वाई वुड यूपीएससी शो दैम इन द पॉजिटिव लाइट। उन्हें पॉजिटिव लाइट में क्यों दिखाएंगे। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर एट्रोसिटीज़ की, दे डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट अस, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, हमें बिन बात की घसीटा वर्ल्ड वॉर्स में, वी लॉस्ट आवर मैन, जो हमारे लाइक वर्क फोर्स थी हमें उसमें लाइक लॉस हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होना चाहिए था जो वो रिवर्स माइग्रेशन हो गया, अर्बन से रूरल में आने लगे, फामाइंस आए इतने कि मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन वाइप्ड आउट। तो भाई ब्रिटिशर्स को पॉजिटिवली क्यों दिखाएंगे। इवन पार्टीशन को नहीं वो अवॉइड कर पाए, पार्टीशन हुआ उनके कारण, तो वाई वुड यूपीएससी शो ब्रिटिशर्स इनटू अ पॉजिटिव फेम। तो अगर कहीं ब्रिटिशर्स दिए हो रहा, कोई ब्रिटिश से रिलेटेड चीज़ हो रही, तो वो नेगेटिव फेम में हो रहा। देखो, अंडर द राइट वारी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द पीजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट। अरे भाई, वो तो डला काट के हमसे उसमें से भी पैसे निकालते थे वो तो, अगर कोई बंदा मर रहा था वो तो उससे भी पैसे लेते थे, मतलब एक थोड़ा मेटाफर के सेंस में बता रहा हूँ कि वो तो उसका भी खून चूस लेते थे। तो जब उसको भी नहीं बचते थे तो भाई एग्जेम्प्ट क्यों करेंगे, इतने तो दयाल नहीं थे। और जब भी हम पढ़ते हैं कोई भी हम सेटलमेंट सिस्टम, वही उसका एक कॉमन चीज़ है कि भाई एट्रोसिटीज़ थी, डिस्क्रिमिनेशन था, एक्सप्लॉयटेशन था, देन हाउ इज स्टेटमेंट 1 करेक्ट, तो ये बन जाएगा गलत। एंड सेकंड स्कीम, भाई ब्रिटिशर्स हैं तो पॉजिटिव काम तो हमारे लिए कुछ किए नहीं, करेंगे नहीं, और कुछ पॉजिटिव किया भी है तो उन्होंने अपने लिए किया है, दे डिड इट फॉर देमसेल्फ। भाई रेलवे उन्होंने बिछाई, रेलवे लाइंस उन्होंने अपने लिए बिछाई कि भाई फूड जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डाल देंगे, अगर ट्रूप्स को मोबिलाइज करना है, ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन हो जाएगा, वेपनरी का मोबिलाइजेशन हो जाएगा, तो वो तो उन्होंने अपने लिए किया था। वो तो उसका साइड इफेक्ट हमें मिल गया ना कि वो हमने उसको एक्सप्लॉइट किया अपने नेशनल फ्रीडम के लिए, नेशनल स्ट्रगल के लिए। बट ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए थोड़ी ना डाली थी वो लाइन्स, रेलवे की लाइन्स। तो वही कि ब्रिटिशर्स इंडियंस के लिए क्यों अच्छा करेंगे, तो स्टेटमेंट 1 बिकम रॉन्ग। Second is कि under the permanent settlement in Bengal, if the zamindar failed to pay his revenue to the state on or before the 5th state, he would be removed from his zamindari। तो हाँ, उसमें कुछ sunset clause है and it is against zamindars, तो भाई अच्छे तो थे नहीं वो ब्रिटिशर्स, तो second statement is correct, second becomes correct।
नेक्स्ट इज की फ्रीडम फाइटर्स प्लस डेड पर्सनैलिटीज मोस्टली करेक्ट एंड पॉजिटिव लाइमलाइट। अब देखो भाई, कोई फ्रीडम फाइटर है, कोई ग्रेट पर्सनैलिटी है, वाई वुड यूपीएससी डेयर टू शो दैट पर्सन इनटू अ नैरेटिव फ्रेम? उसके बारे में गलत क्यों ही बोलेगा? ठीक है, कोई फैक्चुअल चीज़ है वो अलग है कि भाई कोई इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है तो वो बंदा उससे साथ बदल दिया, बट कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, कोई फिलोसॉफिकल चीज़ है कि उस पर्सन से एसोसिएटेड है, तो यूपीएससी उस इंसान को गलत क्यों बोलेगा जिसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है? भले लार्जर डोमेन में वो एक छोटा पर्सन है, छोटा इन द सेंस कि वो उस जिन्होंने फ्रीडम फाइटर या फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया है, दैट पर्सन इज सिंगल पर्सन, बट उसका भी तो कंट्रीब्यूशन रहा है ना। तो अगर उसके बारे में यूपीएससी गलत बोलेगा तो उसी डिग्निटी को हर्ट होगा, उस पर्सन की, उस व्यक्ति की जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया देश को स्वतंत्रता दिलाने में। तो यूपीएससी अगर उनके बारे में गलत स्टेटमेंट दे रहा, उनके आइडियाज़ के बारे में गलत स्टेटमेंट दे रहा, तो डेट विल बी एन अटर डिसरिस्पेक्ट। अभी 2025 में क्वेश्चन आया था राजा राम मोहन रॉय के ऊपर, वो मैंने क्वेश्चन गलत किया था, क्यों गलत किया था मैं बताता हूँ उसको बाद में। बट उस क्वेश्चन में यार यूपीएससी राजा राम मोहन रॉय के बारे में क्यों ही गलत बोले रहा? तो वेन एवर देयर विल बी सम फ्रीडम फाइटर्स और ग्रेट पर्सनैलिटी, तो उनके कंटेक्स्ट में कोई फिलोसॉफिकल चीज़ है, कोई उनके आइडिया के बारे में कोई चीज़ है, तो दैट विल बी जनरली करेक्ट। जनरली क्या, हमेशा करेक्ट होगा। बट कोई फैक्चुअल चीज़ है कि यार उन्होंने कोई न्यूज़पेपर निकाला था या वो दैट पर्सन वॉज एसोसिएटेड विद सम ऑर्गेनाइजेशन, तो वो गलत हो सकता है क्योंकि वो फैक्चुअल चीज़ है, वो यूपीएससी वहाँ पर खेल सकता है। बट आइडिया या कोई फिलोसफी है तो वहाँ यूपीएससी नहीं खेलेगा, वहाँ यूपीएससी दैट विल गिव द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। भाई कोई एप्लीकेशन है और वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जस्ट गो विद ऑल ऑफ द अबव। क्यों, मैं बताता हूँ। फर्स्ट इज की अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। भाई जो अगर इंसान ने नहीं बनाया नैनो पार्टिकल तो नेचर में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। यार तुम एक पत्थर तोड़ दो, बाहर जाके पत्थर मार दो, नैनो पार्टिकल्स तो उससे भी बन जाएंगे, जब वो टूटेगा तुम्हें दिखेंगे थोड़ी ना, तो नेचुरली तो बन सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड, अब जैसे फर्स्ट गलत हो गया तो फर्स्ट को काट दो, यानी कि थर्ड बचा तो थर्ड तो ठीक हो रहा। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। सम भाई पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि कोई मेटेलिक ऑक्साइड है, उसके कुछ नैनो पार्टिकल्स जो हैं कॉस्मेटिक्स में यूज़ हो सकते हैं। हम पढ़ते भी हैं भाई कॉस्मेटिक्स में नैनो पार्टिकल्स होते हैं, तो ठीक है। और एक चीज़ है कि भाई जहाँ ये सम आ जाए ना, वो स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होती है कि भाई ये पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, भाई कहीं तो हो रहा होगा। वी हैव लाइक इतनी सारी कंट्रीज है यार, 170 के आसपास कंट्रीज हैं, उससे ज़्यादा हैं, किसी ना किसी कंट्री में तो हो रहा होगा ना। नॉट अगर इंडिया में नहीं भी हो रहा तो देयर कैन बी एनी कंट्री, कहीं तो हो रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई एक एग्जाम्पल मिल गया तो उससे स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, बिकॉज एब्सोल्यूट नहीं जा रहा, वो एक्सट्रीम में नहीं जा रहा, मिडल पाथ में जा रहा है। सम मेटेलिक ऑक्साइड, सम कॉस्मेटिक्स, सो दिस स्टेटमेंट्स आर मॉडरेट, दे आर जनरली करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रीन हाइड्रोजन। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। ठीक है भाई, हो सकता है, क्या ही दिक्कत है। अभी नहीं हो रहा तो बाद में हो जाएगा। अभी यूपीएससी का रिजल्ट जो आंसर की आती है वो भी 1 साल बाद आती है, तो क्या पता उस टाइम में बीच में हो जाए। इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज एज फ्यूल फॉर हीट। भाई हो सकता है, क्या ही दिक्कत है इसमें। इट कैन बी यूज इन द हाइड्रोजन फ्यूल रन सेल टू रन व्हीकल्स। ठीक है भाई, क्या ही दिक्कत है। अब इन क्वेश्चन में क्या है ना भाई, इन क्वेश्चन में ना फालतू दिमाग नहीं लगाना। अनटिल एंड अनलेस यू आर श्योर कि भाई ये ऑप्शन नहीं है, स्टेटमेंट 1 गलत है, ये आपको 100% श्योरिटी है, ये आपने कहीं पढ़ा है कि 100% श्योरिटी, जस्ट नॉट कि इंट्यूशन आपको बोल रहा है। नहीं, इंट्यूशन से नहीं चलना। आपको पता है कि भाई मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी है, ये स्टेटमेंट ठीक हो ही नहीं सकती, तो उस सिचुएशन में जाना है दूसरे ऑप्शन पे। बट जहाँ पर यहाँ पर ब्रॉड पॉसिबिलिटीज हैं और यू आर नॉट श्योर कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, तो भाई उसको ठीक मानना है और ऑल ऑफ द अबव जाना है। अब इसका सिंपल रीजन है, जो टॉपर्स होते हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, जो मेंस लिखने वाले होते हैं, भाई वो इसका ऑल 3 ही मारेंगे। ठीक है, भले इसका आंसर ऑल 3 हो या ना हो बाद में। अगर आपने इसका आंसर ओनली 2 मार दिया और लास्ट में इसका आंसर निकला ओनली 3, तो आपके -2 नहीं होंगे, आपके -2.66 होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इनका बिना सोचे, बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए, अनटिल एंड अनलेस यू आर श्योर कि भाई इसमें कुछ गलत हो सकता है,
अगर आप उतना श्योर नहीं हो तो इसमें आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें एक तो एक्सेप्शंस है, बट उन एक्सेप्शंस में क्या होता है, उसमें 99% जनता ना ऑल ऑफ द अबव मारती है, बट जब यूपीएससी उसका आंसर बदल देती है ना, तो वो आपकी कट ऑफ को 2 नंबर से घटा देती है, तो उससे आपके सिलेक्शन पर फर्क नहीं पड़ेगा। इफ़ यू जब वो पेपर में आया ना 2024 के पेपर में आया ना, देन आई विल टेल यू, उनसे आपके सिलेक्शन में डिफरेंस नहीं आया ना, उससे कट ऑफ कम हो जाएगी। तो वैसे एक छोटी सी बात है दैट इफ सच ब्रॉड स्टेटमेंट्स आर गिवन कि वहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है, देन गो विद ऑल ऑफ द अबव। अभी है 24वां क्वेश्चन है, मैनी च्युइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब भाई इतनी सारी च्युइंग गम है, कोई एक भी च्युइंग गम मिल रही तो स्टेटमेंट ठीक हो जाती है ना। और च्युइंग गम में तो लाइक हम बोलते हैं कि प्लास्टिक तो जनरली यूज होता ही है, तो भाई इतनी सारी च्युइंग गम्स हैं, कोई एक च्युइंग गम मिल रही, स्टेटमेंट ठीक हो रही। मैनी च्युइंग गम कंटेन्स प्लास्टिक एंड गम, ये तो यार बचपन से खा सुनते आए कि भाई हमें च्युइंग गम नहीं खानी चाहिए, प्लास्टिक होता है इसके अंदर, तो सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है। एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एंड सॉरी यार, लाइक अगर मेरी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है या फिर आपको थोड़ा स्टैमरिंग का इशू हो रहा है, तो इट इज़ बिकॉज कि थोड़ा मेरे को स्टैमरिंग का इशू है ऑब्वियसली, एंड सेकेंडली कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, एंड थर्डली कि मेरा थोड़ा गला भी अभी ख़राब है। तो इफ़ यू आर फीलिंग कि भाई हाँ थोड़ा इशू आ रहा है, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिकॉर्ड दिस वीडियो अगेन फ्रॉम जहाँ से भी इशू आ रहा है एंड विल अपलोड इट। बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई इट इज़ मैनेजेबल, देन लेट्स डू इट एंड लेट्स फिनिश दिस एज सुन एज पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज की 18th स्टेटमेंट विद द पॉसिबिलिटी लॉजिक ऑफ सम कैन एंड मे। भाई ये होती है पॉसिबिलिटीज़ कि इनके कारण ना पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो जाती हैं। अब इनमें क्या ना कि भाई कोई एक भी ठीक हो जाए ना, तो वो ऑप्शन ठीक हो रहा, ठीक है। जैसे बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। बन सकती है भाई, क्या ही दिक्कत है। बायो तो लिविंग के बारे में कुछ बात हो रही है। बायोफिल्म्स क्या होती है भाई, जैसे कुछ कई बार होता है ना, पानी होता है तो उसके ऊपर कुछ एक लेयर से बन जाती है, कुछ स्टेगनेटेड वाटर होता है तो उसके ऊपर कुछ लेयर से बन जाती है। आपने देखा होगा कुछ फूड होता है, कई बार रोटन फूड होता है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, तो वही बायोफिल्म होता है। तो यार बन सकती है, ठीक मेडिकल इम्प्लांट्स है तो उसमें बन सकती है, क्योंकि बॉडी के अंदर है, उसको थोड़ा ब्लड के कंटेक्ट में भी आ रहा है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो भाई बायोफिल्म तो बन सकती है। एंड लिविंग चीज़ है यार, एक्टिविटी तो कहीं भी हो सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ वेरी ब्रॉड एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू नेगेट, एंड व्हेन समथिंग इज डिफिकल्ट टू नेगेट वी विल कंसिडर दैट जनरली करेक्ट, तो ये हम इसे करेक्ट मानेंगे। नाउ स्टेटमेंट 2, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड प्रोसेसिंग सरफेस। फूड प्रोसेसिंग सरफेस हाँ बन सकती है, क्या ही दिक्कत है उसके अंदर। मतलब ऐसा ना कि भाई ऐसी चीज़ है इसको नेगेट नहीं कर सकते, आप इसको नहीं बोल सकते कि ये गलत है, पॉसिबिलिटी है, कहीं ना कहीं तो बन ही जाएगी। बायोफिल्म है, ये भी नहीं कि कुछ आर्टिफिशियल के बारे में बात कर रहे हैं, लिविंग चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना। बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या आप श्योर हो कि भाई ये स्टेटमेंट गलत होगी? इफ़ यू आर नॉट श्योर कि भाई हो सकता है ना, जब AMR की इतनी बात चल रही है तो पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो स्टेटमेंट डी विल बी द ऑप्शन। तो यहाँ तीनों ठीक हो जाएंगी। ये पॉसिबिलिटी का खेल है, इट्स अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। तो ये जो ऑप्शन है ना, सम में एंड कैन, इनके ऊपर ध्यान देना है। आ जाओ 16th पे, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। भाई फॉर एग्जांपल 100 वैराइटीज ऑफ मशरूम है, उसमें से किसी एक वैरायटी के पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हुई तो स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। सिमिलरली सम मशरूम्स हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज। भाई वही 100 मशरूम्स है, कोई एक मशरूम जो है वो नशीली पदार्थों में या जो साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज हैं उसमें है, उसमें उससे हो सकता है भाई नशे करने में कुछ काम कर दे वो, ठीक है भाई हो सकता है, क्या ही दिक्कत है। अभी नहीं मिल रहा तो क्या पता 10 दिन बाद मिल जाए, तो ठीक है, फिर उसको यूपीएससी क्यों ही कोर्ट में जाएगा। तो ऐसी चीज़ें ना नेगेट करना बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत ओपन एंडेड चीज़ें होती हैं। इफ़ समथिंग इज़ वेरी ओपन एंडेड देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, वही लॉजिक है कि भाई 100 वैराइटी सब मशरूम की कोई एक तो हो रहा है जिसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज हो रही, जो ऐसा बायो पेस्टिसाइड या बायो इंसेक्टिसाइड हमारा काम कर सकता है, ठीक है। सब मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। अब ठीक है भाई, इसमें डाउट हुआ था बच्चों को कि भाई बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज कैसे हो सकती हैं, बट ठीक है ना भाई, इतनी सारी वेराइटीज़ हैं, किसी एक में भी मिल गया, एग्जामिनर थोड़ी ना हर जगह जाके ढूंढेगा कि भाई ये मशरूम्स है, भाई इसमें नहीं है। क्या पता किसी कोई ऐसी वैरायटी हो जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई हो, और अंडमान एंड निकोबार जनरल के किसी डेप्थ में हो, वो किसी मतलब कहीं ऐसी जगह पे जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई, बट क्या पता वहाँ पर मिलती हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, यू कैन नॉट जस्ट आउटराइटली नेगेट इट।
तो इसको गलत नहीं कर सकते, इसमें ऑल ऑफ द अबव ही आएगा। अब जितने भी टॉपर्स होंगे ना, रैंकर्स होंगे या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, इसमें ऑल ऑफ द अबव मारेंगे। अगर आप इसमें कुछ और मारते हो ना, ABC कुछ ऐसा करते हो इंस्टेड ऑफ D, तो यू विल लूज -2.66, नॉट जस्ट टू मच। और यही क्वेश्चंस होते हैं जो आपका बैरियर बनते हैं अवे फ्रॉम द प्रीलिम्स की। भाई प्रीनीट क्लियर हो रहा। नेक्स्ट पे आते हैं, सम और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। भाई ठीक है ना, जो हमारे अपने ये होते हैं ना मोनेरा किंगडम के बैक्टीरिया हैं, तो हो सकता है भाई कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना, कि कोई हो कि एक्सट्रीम कंडीशंस पे सर्वाइव कर सकता है, तो पॉसिबिलिटी है। और ठीक है, आपको क्या पता है भाई मिलता है नहीं मिलता, आप श्योर तो नहीं हो ना। अब ठीक है यार, इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोई एक तो मिल ही जाएगा जो एक्सट्रीम कंडीशंस पे सर्वाइव करता है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू नेगेट, तो इट इज़ करेक्ट। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। वही चीज़ है कि भाई फर्स्ट में यदि भाई हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है, तो कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होगा जो बिलो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो ये ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। अब तुम बोल सकते हो कि भाई कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, और ना भाई कोई बिल्कुल एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है, तो हाँ पॉसिबिलिटी है, तो आंसर विल बी सी। ऐसे ही यहाँ पर विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। चलो भाई आपने सब रट लिया कि इतने थर्मल पावर प्लांट है इंडिया के अंदर, बट सबकी डिटेल रटना याद है क्या? रट सकते हो सबकी डिटेल। अब स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? नन ऑफ देम यूज सी वाटर। भाई किसी ने 8 लीटर भी यूज कर लिया तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नन ऑफ देम इज सेट अप इन द वाटर स्टोरेज डिस्ट्रिक्ट। भाई क्यों? इतने सारे मतलब हम ऐसे न्यूज़पेपर में पढ़ते भी हैं, कोई तो हो रहा है यार, कोई तो होगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई बिल्कुल सब जो है वो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। क्या पता होने के बाद हो गया हो कि पहले वाटर रिच था, बट अब कोल पावर प्लांट डाल दिया है, वहाँ लगा दिया है, और अब जो है वाटर स्ट्रेस हो गया है। तो हो सकता है ना भाई, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगी जहाँ पर ये पावर प्लांट है। तो सेकंड ऑल्सो बिकम रॉन्ग। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। अरे यार इतने सारे थर्मल पावर रिएक्टर्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, कोई एक भी प्राइवेटली ओन्ड नहीं हो रहा। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो फ्री के 2 नंबर होते हैं इफ़ यू मार्क देम इनकरेक्ट, या जो 99.99% जनता इसके ऊपर मार्क कर रही है ना, आपने वो नहीं मार्क किया तो यू आर आउट ऑफ द गेम, टू बी ऑनेस्ट। तो इसका आंसर है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, तो कुछ नहीं है, आंसर इज डी। एक्सट्रीम बट फ्रेजेस स्टेटमेंट, चलो पढ़ते हैं। अब कुछ होते हैं एक्सट्रीम स्टेट, ओनली, वंस, सोलली, कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं ना, वो वर्ड्स होते हैं वो गलत होते हैं। चलो भाई, बट ये नहीं कि भाई सिर्फ इसको पढ़ोगे और उससे हो जाएगा गलत हो जाएगा, नहीं भाई, पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है, उसका एसेंस समझना है, उसके बाद देखना है। अब ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ ओनली पढ़ लिया या सोलली पढ़ लिया तो उसके बेसिस पर गलत हो जाएगा। अब ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि ऑल लोन्स गिवन टू MSME कंट्री में, लाइक PSL में आते हैं वो स्टेटमेंट ठीक है, बट वो एक्सट्रीम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी स्टेटमेंट गलत होती है, इसमें ऑल भी डाल सकते हैं। तो वर्ड्स नहीं उठाने आपको, स्टेटमेंट का एसेंस पढ़ना है, एसेंस इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट जस्ट द वर्ड। चलो क्या था ये, हाँ, न्यूमोकोकल वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में है। दीज वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंगाइटिस एंड सेप्सिस। चलो भाई हो सकता है, हमें नहीं पता, छोड़ देते हैं इसको। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, हो सकता है। दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कोज नो एलर्जी। चलो हम यहाँ तक भी रुक जाते हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अरे UPSC ने डाल दिया यार, कोज नो एलर्जिक रिएक्शन। ऐसी कोई दवाई बनी है या ऐसी कोई पॉपुलेशन है कि भाई एक दवाई किसी के रिएक्ट नहीं करती? अरे पैरासीटामोल से रिएक्शन हो जाती है, पैरासीटामोल के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। एक पैरासीटामोल जो पेन किलर है उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो भाई इतना बड़ा नाम है, इतना टिपिकल नेम है, उसकी साइड इफेक्ट नहीं होने क्या? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन किसी एक के तो हो ही सकता है, तो थर्ड तो गलत हो ही नहीं, थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। अब आ जाओ डी पे। चलो भाई अब न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है, भाई कोई एडवांसमेंट हुई है तो कुछ पॉजिटिव हो रहा है उसके बारे में, तो याद करो कि भाई कुछ चीज़ अच्छी है तो उसके बारे में सब कुछ एडवांस। अब हमने कुछ नेगेटिव लाइट में तो उसको पढ़ा नहीं है, कुछ अच्छा ही हो रहा है ना। अब बोल रहा है कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है कि वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है, मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है, सेप्सिस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। तो कुछ तो अच्छा भाई, कुछ तो नया हो रहा है, कुछ बढ़िया हो रहा है।
तो इनकी इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी अच्छा होना चाहिए। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। भाई AMR कम करने की बात कर रहा है ये, तो गलत कैसे हो सकती है? तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। भाई ये थोड़ा लॉजिक है, थोड़ा कॉमन सेंस है, ये PYQs प्रैक्टिस ही आएगा। अब ये कि भाई इसमें ना आपको बायस नहीं होना, इसमें थोड़ा दिमाग ओपन रखना है। आ जाओ इसमें 64 योजनी टेम्पल के बारे में बात कर रहा है। इट इज़ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छापरदा, जो भी नाम है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, कच्छापरदा डायनेस्टी। कोई हर्ट मत होना यार, मतलब सॉरी, मतलब ऐसे ही मेरे को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का भी रहता है कुछ टिपिकल नेम्स में, ठीक है। चलो नहीं पता इसके बारे में हमें। इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल विद इन इंडिया। अरे भाई इतने टेम्पल्स हैं देश के अंदर, सिर्फ एक ही सर्कुलर टेम्पल है हमारे पास, बताओ। कतई अबसर्ड स्टेटमेंट है, कतई रॉन्ग स्टेटमेंट है। भाई इतने सारे टेम्पल है, और भी हो सकता है, और भी हो सकता है कोई उसमें क्या रहता है अपना सर्कुलर, तो सेकंड बिकम्स रॉन्ग। जैसे सेकंड टोटल हो गया तो चलो मान लिया, एक बार सेकंड भी मान लेते, चलो नहीं है ठीक है, क्या पता एक ही हो। थर्ड पे आ जाओ। इट वॉज मेंट टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट। भाई 64 योजनी माता के बारे में बात हो रही है, माँ दुर्गा के बारे में बात हो रही है। 64 योजनी माता से रिलेट करते हैं, शक्ति कल्ट आना चाहिए यहाँ पे, शक्तिज्म। तो वैष्णव कहाँ से आ जाएगा, तो थर्ड से भी ये गलत हो जाएगा। जब थर्ड भी गलत हो जाए तो या तो 1-2 हो रहा है या 1-4 हो रहा है, तो 1 तो ठीक ही है। अब आ जाओ 4 पे आ जाओ। इट डिजाइंस हैज़ गिवन द राइज टू पॉपुलर बिलीव दैट इट इज द इंस्पिरेशन। या जब इंस्पिरेशन जैसी बात करते हैं ना, तो ये होती है पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये होती है प्राउड स्टेटमेंट। यू कैन नॉट नेवर नेगेट दीज स्टेटमेंट्स, तो ये होती है पॉजिटिव। भाई अब ये बोल रहा है कि भाई 64 योजनी का जो टेम्पल का डिज़ाइन है उसने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है ना भाई, पार्लियामेंट के ऊपर थोड़े आप तुम क्वेश्चन उठा दो ऐसे, किया होगा, क्या ही दिक्कत है। तो 4 ठीक है। सेकंड थोड़ा एक्सट्रीम भी है, तो सेकंड टोटल कर देंगे, आंसर हो जाएगा C। थोड़ा लंबा हो गया यार वीडियो, 56 मिनट का। चलो कोई नहीं, आपके लिए है, मेरा भी थोड़ा डला है। एक्चुअली मेरे को बोलने की आदत नहीं है ज़्यादा, मैं थोड़ा चुप इंसान रहता हूँ, ज़्यादा डिस्कस करता नहीं हूँ चीज़ें, बट या सोचा लाइक मुझे अपनी नॉलेज जो है, अपना एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो या आई एम मेकिंग दिस वीडियोस। आप पसंद आए तो लाइक यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है यार, वो दिमाग में आता है दैट अगर मैंने शेयर किया और मेरे फ्रेंड का भी हो गया तो यार वो सीट्स कट जाएगी, कट ऑफ बढ़ जाएगी, मैं नहीं शेयर करूँगा। चलो यार तुम्हारी मर्जी है, बाकी एल्गोरिथम जिंदाबाद, जो हो रहा ठीक है, आगे पढ़ाई भी दे देते हैं। With reference to India, consider the following statements. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of right. अरे भाई, जहाँ पुलिस को, जहाँ हमारे जुडिशियल जो हमारा कस्टडी सिस्टम है उसको इतना क्रिटिसाइज किया जाता है, पैरोल नहीं तुम डिनाई कर सकते। भाई किसी बंदे को ठीक है उसने केस कर दी, मतलब उसका केस है कि भाई उसे पैरोल मिलनी चाहिए, स्टैट्यूट बोलता है, बट क्या पता भाई वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करते हैं, क्या पता जाके, क्या पता आपको टिप मिल जाए सरकार को। फॉर एग्जांपल किसी ने मर्डर किया किसी का, ठीक है, उसने 10 साल जेल में बिताए। अब ना गवर्नमेंट, चलो उसकी ना किसी घर में शादी थी, शादी है, उसने सरकार को बोला कि भाई मेरी बेटी की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, मुझे शादी अटेंड करनी है, तो मुझे पैरोल दे दो। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई पैरोल मिल जाएगी तुम्हें। अब उस बंदे ने जिसका मर्डर किया था उसकी फैमिली को डाउट हुआ कि भाई कुछ ऐसा है कि भाई शायद दोबारा हमें हार्म कर सकता है, तो उसने उस जो विक्टिम की फैमिली थी, उस विक्टिम की फैमिली ने गवर्नमेंट को लिखा कि भाई ऐसे ऐसे बंदा है, हमें डाउट है या हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं कि हमारे ऊपर दोबारा अटैक कर सकता है, कि हमारी जान को खतरा है, तो क्या भाई पैरोल उसकी कैंसिल नहीं हो सकती। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में सोचने हैं। यू हैव टू अप्लाई सच थिंग्स इन द एग्जाम। जब तक ये चीज़ें अप्लाई नहीं करोगे, जैसे एग्जाम्पल नहीं सोचोगे, थोड़ा चाहे भले एब्सर्ड एग्जाम्पल है बट सोचना है भाई, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर आपको ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करना होगा, तभी क्वेश्चन ठीक होनी है। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, कैन नॉट बी डिनाइड। भाई कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर रूल्स, ओन पैरोल रूल्स, ठीक है, प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, चलो आंसर भी आ जाएगा। अब आता है वर्ड एसोसिएशन।
अब काफ़ी चीज़ें यार हमें पढ़ी नहीं होती बट सॉल्व कर रहे हैं, 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 90+ अटैम्प्ट करने हैं। तो देखो चलो, R2 code of practice is constitute a tool available for promoting the adoption। R2 code of practice चलो हमें नहीं पता, हाँ ऑप्शन पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, चलो हो सकता है। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर, ये भी हो सकता है। चलो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स इन द डिग्रेडेड लैंड्स, हो सकता है। चलो EIA इन द एक्सप्लोटेशन, भाई ये चारों हैं, चारों में से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या ही करें हम। तो बात है यहाँ पर वर्ड एसोसिएशन। वर्ड एसोसिएशन क्या है? R2। अब जब मैं इसको बताऊँ ना आपको लगेगा यार ये तो आंसर की आने के बाद या तो गूगल से करके कोई भी लॉजिक बना लेगा, बट ये सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं लगा रहा, ये काफ़ी क्वेश्चन में बनता है कि जब कोई लंबा क्वेश्चन है और ऐसे बोल दे कि 100 मिलियन फार्मर्स हैं, कोई ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो ऐसे में वर्ड एसोसिएशन ही लगता है। अभी 2023 से 2 क्वेश्चन हैं, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर के नाम से है, एक दूसरा और है सैटेलाइट DNA आई गेस, तो माइक्रो सैटेलाइट DNA, तो उसमें भी वर्ड एसोसिएशन ही बनेगा। तो R2 है, R2 2 बार R, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग। अब कहीं ना ही ऑप्शन बी में रिपीट हो रहा है, ना ही सी में रिपीट हो रहा है, ना ही डी में रिपीट हो रहा है। अब ये R2 का लॉजिक तो यहीं बन रहा है, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल और रिसाइकलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग, R2। तो भाई भले जिस पर एब्सर्ड लग रहा लगे, बट जब ये लॉजिक लगते हैं तो ये सॉल्व होती हैं चीज़ें, इनसे होता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो रही। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी भाई ये लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मैं जनरली बोलता हूँ लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, क्यों? क्योंकि UPSC ने आजकल ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, अब हमें आंसर नहीं पता होता। तो इसमें प्रोबेबिलिटी जब आप लगाओगे ना तो वो उसमें आपको आंसर दे रहा है N-2। अगर कोई 4 स्टेटमेंट का ऑप्शन है जिसमें जैसे 4 स्टेटमेंट दिए हैं और ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, आपको नहीं पता बट आपको वो अटेम्प्ट करना है, तो योर सेफ ऑप्शन इज ओनली 2। दिस इज फॉर 4 स्टेटमेंट। 5 स्टेटमेंट के लिए आपको हो जाएगा N-2 यानी कि 3 स्टेटमेंट। इवन जैसे होता है ना ऑप्शन ये वाले 1 to 1 to 3, 3 to 4, कुछ इस टाइप के जो ऑप्शन होते हैं, इसमें भी UPSC जब आप ऑब्जर्व करोगे ना 5 स्टेटमेंट वालों में से जो जनरली आंसर होगा 95% टाइम्स ना आंसर 3 स्टेटमेंट वाला होगा, ऑल ऑफ द अबव या 4 स्टेटमेंट वाला नहीं होगा। तो ये रूल है, इवन या ओनली 1, ओनली 2 हो या इवन 1, 2 and 3 वाला हो या 2, 3, 5 ऐसे वाले ऑप्शन जो बनते हैं ना उसमें भी 5 में से 3 ही ठीक होते हैं। तो N-2 का रूल है वो आपको फॉलो करना है। सिमिलरली इसमें है 3/3 का मैट्रिक्स है, सॉरी 4/3 का मैट्रिक्स है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी आपको बोलती है N-2, 2, 4, इसका आंसर आएगा 2। अब देखो ना ये जो 3 वाले होते हैं ना 3 स्टेटमेंट वाले, इसमें ये थोड़ा डिफिएशन आता है। इसमें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ओनली 1 भी हो सकता है और ओनली 2 भी हो सकता है। इसमें UPSC खेलता है, कई बार नन भी दे देता है, तो ये चीज़ इसमें नहीं लगती। तो अगर आपके पास 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो ना तो जनरली उनको स्कीप करो अगर वो आपको नहीं आता है। ओनली 1, ओनली 2 पे मत खेलना। बट 4th वाला है 4 स्टेटमेंट है उससे ज़्यादा है तो उसमें N/2 जो है 90% टाइम लग जाती है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 पे। अब इसमें है ना थोड़ा ये है कि भाई जब ऐसे साइक्लिंग वाले हो ना ऐसे जब एक क्रोनोलॉजी बतानी हो तो उसमें अगर आपको नहीं याद आ रहा तो प्रोबेबिलिटी है ये भी। तो प्रोबेबिलिटी में कैसे है, ऑप्शन ए में जाओ, पढ़ना रिपीट हो रहा है, पढ़ना रिपीट हो रहा है, सरकार सुबह रिपीट नहीं हो रहा, तो जो रिपीट हो रहा है ना उनको सर्कल कर लो। पढ़ना रिपीट हो रहा है इसलिए पढ़ना रिपीट हो रहा है, तो इसमें आपने इसको कर लिया अंडरलाइन, मतलब सर्कल कर लिया। दूसरे में हो सरकार रिपीट हो रहा है, पढ़ना और सुबह रिपीट नहीं हो रहा। थर्ड में हो सुबह रिपीट हो रहा है, पढ़ना और सरकार। अब जिसमें मैक्सिमम रिपीट हो रहा है ना ऑप्शन होता है, इसका आंसर इज ए। ये 2 क्वेश्चन में और आएगा, मैं दोबारा इसको बताऊँगा, फिर आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। इसमें क्या है ना कि यार इनकी ना अरेंजमेंट करने की लिमिटेड पॉसिबिलिटी है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एग्जामिनर क्या करता है कि एक को ठीक करता है, जैसे जो ठीक वाला है वो उसको डाल दे रहा और जो दूसरे ऑप्शन होंगे फिर उसको इंटरचेंज करेगा। तो क्या करना है इसमें, अब यहाँ पढ़ना है तो देखो पढ़ना कहीं रिपीट हो रहा है, यस हो रहा है, तो इनको अंडरलाइन कर लेना है, मतलब सर्कल कर लेना है। अब दूसरे में जाओ, सरकार है, सरकार रिपीट हो रहा है, उसे अंडरलाइन में सर्कल कर लो। सुबह है, सुबह रिपीट हो रहा है, सुबह, तो जिसमें मैक्सिमम रिपीट हो रहा है ना वो आंसर होगा जनरली।
ये नहीं है भाई, तुक्का नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है एंड दिस अप्लाइज टू अदर क्वेश्चंस एज वेल। तो इतना नहीं सोचना इन सब में। चलो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड, जल्दी से निपटाते हैं। पेयर इन सिमिलर स्टेटमेंट सिमिलर रो टुगेदर। भाई पेयर बनाने हैं, जैसे वो थे ना वो कॉन्ट्राडिक्टरी वाले स्टेटमेंट्स, ऐसे ही ये पेयर वाले हैं जहाँ दो स्टेटमेंट्स का पेयर बन रहा है, तीन स्टेटमेंट्स का पेयर बन रहा है। अगर पेयर बन रहा है किसी स्टेटमेंट का तो वो पेयर में ही ठीक होंगे और पेयर में ही गलत होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई वो अलग अलग ठीक होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है रकमा भाई केस ऑफ 1884। अब ये क्वेश्चन आया था ना, बहुत सरप्राइज एलिमेंट था, किसी को नहीं आता था ये क्वेश्चन, मतलब किसी एक्सेप्शनली किसी को आता होगा बट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को नहीं आता था। तब इसको सॉल्व करने का क्या ऑप्शन है? अब ऑप्शंस पढ़ो। वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, एक तो होता है एजुकेशन, ठीक है। दूसरा है एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट जनरली मैरिज से रिलेटेड होता है। थर्ड है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये भी मैरिज से रिलेटेड है। तो दो ऑप्शन जो है मैरिज से रिलेटेड है, एक ऑप्शन एजुकेशन से रिलेटेड है। अब आपको इस क्वेश्चन में रिस्क उठाना है, तो रिस्क कैसे उठाएंगे? सिमिलर को टुगेदर, पेयर बनाना है, या ओड वन आउट भी बोल सकते हैं इसमें। तो 2 और 3 तो यार ठीक होंगे। अब रही बात बी और डी की। अब भाई दो ऑप्शंस जो है मैरिज की बात कर रहा है, तीसरा ऑप्शन क्यों एजुकेशन की बात करेगा? अब इसमें ना रिस्क लेने वाली बात है कि भाई मैं बी मारूँ या डी मारूँ। बट अगर आपने इसको एलिमिनेट कर लिया है कि भाई बी या डी में से आंसर होगा, तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक कि भाई आपने कॉमन स्टेटमेंट्स को एक ग्रुप में बना लिया है, तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। अब थोड़ा इसमें है कि लॉजिक लगाना, कुछ अपना रिस्क लेना, कुछ गेस वर्क करना, तो ये सब भी चीज़ें इंक्लूड होगी। बट जो मेरा एप्टीट्यूड मुझे बोलेगा कि भाई दो चीज़ें मैरिज से रिलेटेड है, तीसरी एजुकेशन से रिलेटेड है। अब ठीक है, कुछ बोलेंगे कि भाई वुमेन के फेवर में है तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव मारना चाहिए। बट मैं बोलूँगा कि भाई देखो, दो पेयर में जा रहे हैं और एक थोड़ा उसमें जा रहा है, ऑपोजिट में जा रहा है, अलग डोमेन में जा रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो गलत हो। बट इसमें ना दो लॉजिक लग सकते हैं, या तो आप ऑल ऑफ द अबव मार दो कि भाई वुमेन के पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं, वुमेन इज अ वल्नरेबल सेक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ यूपीएससी क्वेश्चंस। तो जब वल्नरेबल सेक्शंस के बारे में बात हो रही है तो जनरली यूपीएससी स्टेटमेंट सही बनाता है। तो या तो फिर ऑल ऑफ द अबव भी मार सकते हो और इसमें डी भी मार सकते हो, बी भी मार सकते हो, डी भी मार सकते हो। बट माई मोटिव इज कि भाई जब सिमिलर स्टेटमेंट्स हो तो उनको ग्रुप इन बनाओ और वो ग्रुप हमेशा ठीक होगा। फाइनल आंसर क्या है वो डिपेंड करता है। अब आता है कॉमन सेंस, जो कि कॉमन नहीं है बिल्कुल भी। कैसे? In India, under cyber insurance for individuals, which of the following benefits are generally covered in addition to payment for the loss of fund and other benefits? Cost of restoration of the computer system in case of malware disrupting access to one's computer. भाई ठीक भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। चलो दूसरे पे आओ। Cost of a new computer if some miscreant willfully damage। भाई अब सम देख के इसे ठीक मत मार देना। मैंने बोला था you have to read the statement, you have to capture the essence of statement। अब मेरे पास कंप्यूटर है, मैं उसको तोड़ दूँ अपनी मर्जी से, तो मुझे उसका इंश्योरेंस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना भाई। तो सेकंड स्टेटमेंट कैसे ठीक हो सकती है? तो सेकंड गलत होगी। और यूपीएससी ऑप्शंस भी ऐसे फ्रेम करता है दैट माइंड इट वंस लाइक कि यूपीएससी फ्रेम ऐसे ही करता है। अगर आपने वो ट्रैप कैच कर लिया ना तो वो एलिमिनेट करवा देगा सब चीज़ें। और देखोगे आपको इसमें भी दिखाता हूँ मैं कैसे। तो भाई ये है वो ट्रैप कैच करने वाली बात, और वो ट्रैप्स आएंगे प्रैक्टिस के साथ। तो यहाँ जैसे ही आपने 2 को कैप्चर किया, 2 गलत हुआ, आंसर आ गया हमारा बी। मैंने दूसरे चलो ये पढ़ लेना था थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट, बट थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा आगे नहीं जा रहा, बट थोड़ा ऊपर से बता रहा हूँ। बट हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आई विल टेल यू। तो आवर क्वेश्चन नंबर 25, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू cause neurodegenerative problems are generated as environmental pollutants from which of the following। भाई ठीक है, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स हो रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स हो रही हैं। भाई दिमाग की प्रॉब्लम है, बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो क्या चीज़ है कि भाई जिससे वो रिलीज़ हो रहे होंगे, ठीक है, हमें वो बताना है। ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल, भाई हो सकता है। इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, ये भी हो सकता है। माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम्स, हो सकता है भाई। पावर प्लांट्स एंड टेलीफोन लाइन्स, नहीं पता। अब एक बार तो मन बोले रहा भाई मैं ऑल ऑफ द अबव मार दूँ। अब मैंने ऊपर क्या बताया था, जब 4 से ज़्यादा स्टेटमेंट हो ना तो उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना थोड़ा मुश्किल है। प्रोबेबिलिटी चलती है n-2 वाली। इसमें भी बोला जाएगी कैसे? अब देखो यार, सबसे इसमें ना देखो, सबसे
कॉमन मतलब सबसे ना ईजी टू नेरेट क्या है, ईजी टू मतलब सॉरी नेरेट नहीं, ईजी टू एलिमिनेट क्या है। देखो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव हमारे घर में रहता है, अगर उससे मैग्नेटाइट पार्टिकल्स रिलीज होंगे जिससे न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स हैं, तो भाई सरकार क्यों ही अलाउ करेगी। जनता तो देश की है, सरकार देश की है, तो अपनी जनता को थोड़ी ना मरने देगी वो। तो जब माइक्रोवेव हम घर में यूज़ कर रहे हैं तो उससे अगर न्यूरो डिजेनरेटिव पार्टिकल्स या मैग्नेटाइट पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं जिससे न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स हो रही, तो वाई वुड गवर्नमेंट अलाउ दिस। तो भाई थर्ड तो नहीं हो सकता। जैसे ही हम थर्ड को एलिमिनेट करेंगे आंसर आ जाएगा बी। यहाँ भी हो रहा है 5n-2 5-2 3। ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, मोनाजाइट कंटेन थोरियम, मोनाजाइट अक्रस नेचुरली इन द एंटायर। भाई इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी, ठीक है, ये बोल रहा है एंटायर इंडियन कोस्ट लाइन, यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड भी हैं। भाई किसी एक पार्सल पर नहीं मिला तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, यूपीएससी ऑप्शंस भी ऐसे बनाता है। थर्ड स्टेटमेंट थोड़ा एक्सट्रीम है, एंटायर कोस्ट लाइन। तो थर्ड को जैसे ही एलिमिनेट करेंगे, उधर भाई वर्ड्स नहीं उठाने, सिर्फ वर्ड नहीं उठाना, उसको अप्लाई करना है, एग्जाम्पल बना के देखना है। अभी जैसे फोर्थ है, इंडियन इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली। अब थर्ड और फोर्थ में कह दो कि भाई क्या पता फोर्थ गलत हो। अब ठीक है, ओनली आ गया, तो मैंने आपको बोला था कि भाई सिर्फ वर्ड्स नहीं उठाने हैं, उसका एसेंस पढ़ना है। और जब आप ये एप्टीट्यूड डेवलप कर लोगे, यू विल टेल कि भाई थर्ड जो है वो गलत है एज कम्पेयर टू फोर्थ, तो यू विल मार्क थर्ड इनकरेक्ट एंड बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो भाई वाइंड अप करते हैं। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट मेरे को बतानी है आपको, आर्ट ऑफ लेटिंग गो। भाई 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल ही एब्सर्ड होंगे, बिल्कुल ही फैक्चुअल होंगे, जिनके बारे में आपको नहीं पता, उसमें रिस्क नहीं लेने का, रिस्क नहीं लेना भाई मेन बात का। तो जो रूल मैंने आपको बताया है 90-10 का 30-60, ये रूल है, एक आइडियल रूल है जो आप फॉलो कर सकते हो, और उसके बेसिस पे देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चन जहाँ हमें स्किप करना है उनको। और स्पेशली सी सेट में क्या होता है ना कि भाई जिसका रीजनिंग अच्छा होता है या मैथ्स अच्छा होता है और कोई क्वेश्चन फंस जाए, वो तो ना बंदा ईगो पे ले लेता है उसको कि भाई मैं तो सोल्व करूँगा, मेरा तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। उस चक्कर में क्या है, 2 मिनट लगने चाहिए क्वेश्चन के ऊपर, 10 मिनट टपा देता है, 5 क्वेश्चन का टाइम चला गया, फिर पेपर पूरा नहीं होता। तो आर्ट ऑफ लेटिंग गो में 2 मतलब है कि भाई जहाँ टाइम लग रहा है उसको छोड़ दो, उस पर बाद में आना, या क्वेश्चन नहीं आता अननेसेसरीली रिस्क नहीं लेना उसके ऊपर, एप्टीट्यूड नहीं लग रहा उसमें, लॉजिक नहीं लगता, तो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना, उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। तो द थिंग इज की लास्ट में ब्रह्मास्त्र बताता हूँ। टू क्लियर दिस प्रीलिम्स, you need certain things which I call my brahmastra. You need patience, you need temperament, you need you need perseverance and just you need practice, you need static knowledge, और उसके साथ में आपको चाहिए एप्टीट्यूड। भाई ये सब लगे रहा प्रीलिम्स क्लियर करने में, सिर्फ तुक्केबाजी से करंट अफेयर पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है। पेशेंस चाहिए, टेम्परामेंट चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, स्टैटिक नॉलेज चाहिए, और उनके साथ साथ चाहिए एप्टीट्यूड। विदाउट एप्टीट्यूड इट विल बी डिफिकल्ट टू क्लियर दिस एग्जाम। तो कीप प्रैक्टिसिंग, सरेंडर योरसेल्फ कंप्लीटली इनटू वन थिंग। भाई प्रीलिम्स आने वाला है, एक चीज़ में लग जाओ एंड यू विल फाइंड द डेस्टिनी। अपना 100% दो। ऐसा नहीं आना चाहिए दिमाग में कि भाई नहीं हो रहा या मैं 10 चीज़ें कर लूँ, उससे नहीं हो रहा। सरेंडर योर सेल्फ कम्प्लीटली इनटू वन सिंगल थिंग। भाई एक चीज़ पढ़ रहे हो तो उसी में ध्यान दो, वही करनी है, उसी से हो रहा। इन केस यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी, यू वांट टू एड्रेस contact me with respect to your query, you can write me a mail on this rentrust.approach.csc@gmail.com. Till then, Jai Hind, see you on the next video. बाकी कोई इशू हो तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी ऑन rentrust.approach.csc@gmail.com. एंड सॉरी फॉर माई वॉइस, थोड़ा लंबा बोलने की आदत नहीं है मेरे को, थोड़ा रुक गया मेरा।
Yeah, but videos will keep coming further. And till then, subscribe, like and share. And कुछ issue हो, कुछ review देने हो, कुछ suggestion देना हो, you can tell me in the comment box. Thank you.